So this is a MCQ test on tissues. Try to give the question answers to that. There are only 10 questions which are there. Is the screen visible to you? Yes, ma'am. Okay. Let us wait for 1-2 minutes more. Maybe some more students also join. So it is taking more time. So we will start with the quiz. Okay. Are you ready, Abhishek? So first question. Complex tissues consist of. What will be the answer? Complex tissue consists of. Abhishek, are you there? Complex tissue consists of. What will be the correct answer? Different types of cells having same origin and carry the same function. Same types of cell having same origin and carry the same function. Different types of cells carrying out the same function. Different types of cells carrying out different function. What will be the answer? Yes, ma'am. Yes. What will be the answer of question 1 I'm asking? Tell me what will be the answer of question 1. Ma'am, Complex your voice is not clear. क्वेश्चन 1 का आंसर बताना है बेटा. मेरा वॉइस क्लियर नहीं है, आपको स्क्रीन शेयर है. यू हैव टू गिव द क्वेश्चन 1 आंसर. टेल मी द आंसर. करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसका? टेल मी करेक्ट ऑप्शन.
कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर क्या होता है? Ma'am, your voice is not clear. What is the correct option I am asking? Correct option is what? Give me correct option of question 1. Out of these 4, what will be the correct option? Complex tissue किसे कहते हैं? आपको पता है जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है. जाइलम is a complex tissue and phloem is also a complex tissue. ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं बिकॉज इनके अंदर बहुत सारे डिफरेंट तरीके के सेल्स होते हैं. तो व्हाट ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन out of these? Different types of cells having same origin, same type of cells having same origin, different types of cells carrying out same function, different types of cells carrying out different function. What will be the correct answer? Tell me. We will go with first, okay? Because इसमें दोनों चीजें बात करी है, different types of cells की बात भी करी है एंड सेम फंक्शन करने की बात भी करी है, क्योंकि हमें पता है कि टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स मे बी सेम और डिफरेंट इन स्ट्रक्चर्स बट परफॉर्मिंग सेम फंक्शन एंड कॉमन ओरिजिन. ये 3-4 चीजें टिश्यूज में होती हैं. ओरिजिन कॉमन होता है, मतलब उनका जो पेरेंट सेल है वो सेम है. ओरिजिन कॉमन होगा, फंक्शन कॉमन होगा. ठीक है, function also will be same. Function will be same and maybe same similar structure. स्ट्रक्चर कैसा होगा? एक जैसा होगा, एक ही नहीं होगा बट एक जैसा होगा उन सेल्स का. सिमिलर सेल्स. सो ये टिश्यू होता है. इट इज अ टिश्यू. टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन, जिसका ओरिजिन कॉमन होता है. कॉमन ओरिजिन, सेम फंक्शन. ठीक है, सेम फंक्शन होता है. सिमिलर सेल्स होते हैं. इट हैज सिमिलर सेल्स. ठीक है, तो हमने पहले जो क्वेश्चन है उसका पहला ऑप्शन टिक कर दिया कि सेल्स डिफरेंट होंगे, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं? कौन से सेल्स की, टिश्यू की बात कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात. इज इट क्लियर? टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स टिश्यू. Now coming to next, different types of cells carrying out different function. Different types of cells carrying out different function. किसमें होगा ये? What will be the correct option? Tell me बेटा. Which option will be correct? और जो बच्चे हैं, ऋषित, तनिषा, आप भी ट्राई कर सकते हो. You can also try giving the answer. Try and give the answer. Ma'am, sieve tubes. Different types of cells carrying out different functions. Sieve tubes you are giving, we have to put one option correct. Okay. So let us put sieve tubes. Ma'am, your screen is not visible. Okay. Maybe some problem is there. I am just making it visible. So you can see we were on the second question. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे थे हम. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैविंग कैरिंग आउट डिफरेंट फंक्शंस. तो हम इसमें अगर सीव ट्यूब्स को मार्क कर रहे हैं, तो अब आगे से थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू डज नॉट प्रोसेस लिविंग प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी? थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा प्लांट टिश्यू के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता जब वो मैच्योर हो जाता है. व्हेन इट गेट्स मैच्योर इट डज नॉट हैव प्रोटोप्लाज्म. व्हाट आंसर यू विल गिव? Tell me what answer you will give.
Which of the following plant tissue does not possesses living protoplasmic tissue? का रिविजन चल रहा है बेटा, and you are not able to give me answers. Have you not studied tissue chapter? वर्क कंप्लीट नहीं है क्या आपका टिश्यूज का? अगर आपने टिश्यूज चैप्टर कर लिया है तो यू हैव टू गिव द आंसर्स. यू आर टेलिंग कोलेनकाइमा. कोलेनकाइमा तो लिविंग रहता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट व्हिच आर लिविंग. वन पेरेनकाइमा इज लिविंग. डू यू रिमेम्बर? पेरेनकाइमा भी लिविंग होता है एंड कोलेनकाइमा भी लिविंग होता है. दोनों में न्यूक्लियस, दोनों में साइटोप्लाज्म होता है. और अगर वो मैच्योर भी हो जाएंगे तब भी उनका साइटोप्लाज्म रहेगा, लिविंग रहेंगे वो. तो ये दोनों तो नहीं हो सकते. कोलेनकाइमा नहीं हो सकता, एपिडर्मिस नहीं हो सकता. कोलेनकाइमा और एपिडर्मिस नहीं हो सकता. ट्रैकिया एंड स्क्लेरेनकाइमा में से कोई होगा. तो कौन से सेल्स डेड होते हैं? Which cells are dead? Which option we can give? Sclerenchyma. We will put in sclerenchyma. Let us see. When we will submit the answers, हमें answers पता चल जाएंगे करेक्ट वाले. अगर हमारा इनकरेक्ट होगा कहीं तो वो भी हमें पता चल जाएगा. ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट. जस्ट गिव मी द आंसर्स. आपको जो लगता है अपने अंडरस्टैंडिंग से, टिश्यूज चैप्टर की जो अंडरस्टैंडिंग थी उससे आप मुझे वो आंसर्स बता दोगे. Is it clear? You just give your answers according to your understanding. Need not to worry about whether it is correct or whether it is wrong. Just give me the answers. Phloem in plant perform the function of. Phloem plant में क्या function perform करता है? Photosynthesis, providing support, conduction of water, conduction of food. क्या करता है? What it do? फ्लोएम का क्या फंक्शन होता है? बताओ, जल्दी से बताओ. तो बहुत सिंपल है. जाइलम का फंक्शन और फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है? जल्दी बताओ. फोटोसिंथेसिस, प्रोवाइडिंग फूड, Conduction of food. Okay, conduction of food. Now next, where in apical meristem found? Apical meristem कहाँ मिलता है? Roots tip, shoot tip कहाँ मिलता है? Neither A nor B, no only A, both A and B, only B. कहाँ मिलेगा? Where is the both A and B found? Both A and B. मतलब एपिकल मेरिस्टम आपको पता होना चाहिए. टिप्स पे प्रेजेंट होने वाला मेरिस्टम है जो कि टिप्स पे प्रेजेंट होता है. और तो वो दोनों की टिप्स पे मिलता है. स्टेम की टिप पे भी मिलता है. रूट की, अगर ये पत्ता, ये कोई प्लांट है तो इस प्लांट के टिप्स पे मिलेगा, ऊपर भी स्टेम में. और अगर ये इसकी जड़ें हैं तो जड़ों के टिप्स में भी हमें क्या मिलेगा? एपिकल मेरिस्टम. एंड पॉइंट्स पे मिलता है. ठीक है, तो बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट, इन डेजर्ट प्लांट in desert plant rate of water loss get reduced due to presence of water. डेजर्ट प्लांट में वाटर लॉस जो होता है वो कम हो जाता है. किसकी प्रेजेंस की वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा, सबरिन, लिग्निन, क्यूटिकल. किसकी प्रेजेंस की वजह से? स्टोमेटा. स्टोमेटा की वजह से. स्टोमेटा तो ऐसे पोर्स होते हैं जो कि ट्रांसपिरेशन करते हैं, मतलब वाटर को लॉस करते हैं. डेजर्ट प्लांट में बोल रहा है क्वेश्चन कि पानी कम उड़ेगा, वाटर लॉस अब कम होगा. तो इनमें से किसकी वजह से कम होगा? स्टोमेटा की वजह से, सबरिन की वजह से, लिग्निन की वजह से, या क्यूटिकल की वजह से? क्या होगा आंसर? ट्राई. इट्स ओके, आपने ट्राई किया, मैंने आपको बता दिया. देखो, आपने स्टोमेटा बोला, मैंने उसका फंक्शन आपको बताया. आप अगर गलत करते हैं तो भी आपको सही चीज पता चलती है. तो गलत या सही आपको नहीं पता, आपको जस्ट आंसर देना होता है. गलत सही बाद की बात है. आंसर ना देना गलत है. जरूर आंसर देना चाहिए बस, चाहे वो कुछ भी आंसर हो. गिव मी आंसर. डेजर्ट प्लांट में
पानी जो उड़ता है पौधों से वो कम उड़ेगा, रिड्यूस, वाटर लॉस रिड्यूस होगा। किसकी वजह से? स्टोमेटा की वजह से, सब्रिन की वजह से, लिग्निन की वजह से, या फिर क्यूटिकल की। देखो लिग्निन क्या होता है, जो आपके स्क्लेरेनकाइमा के अंदर जो डेड टिश्यूज हैं स्क्लेरेनकाइमा, उनके अंदर जो भर जाता है, उनकी वॉल्स में जो भर जाता है वो लिग्निन है, सेल वॉल मटेरियल है लिग्निन। लिग्निन इज अ सेल वॉल मटेरियल, जिससे गैप बहुत कम बचता है सेल के अंदर, क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा डेड है, इसीलिए उसमें अगर लिग्निन भर भी जाता है तो सही है उसके लिए। क्यूटिकल क्या होता है? अब क्यूटिकल एक ऐसा वैक्सी सब्सटेंस होता है जो कोई प्लांट अपने पत्तों के ऊपर जिससे जिससे कोट करके रखता है उसको, जिससे पूरा पत्ता शाइनी लगता है, ग्लॉसी लगता है। तो एक वैक्सी सब्सटेंस होता है क्यूटिकल। सिब्रिन, सब्रिन भी वैक्सी सब्सटेंस होता है, बट ये टिश्यूज के अंदर होता है। अगर हम किसी सरफेस पे नहीं होता, अंदर होता है टिश्यूज। तो अब इसमें से कौन सा क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं? क्यूटिकल लगाते हैं, फिर बाद में जब हम सबमिट करेंगे तब हम इसे देखेंगे करेक्ट आंसर क्या है। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पैरेन्काइमा कंटेन आइसोडायमेट्रिक सेल्स, कैम्बियम हैज द apical meristrum, in monocot stem intercalary meristrum is located at the base of internodes, proteopotency exists in the meristematic cells। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढनी है, तो बताओ कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी? स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट। ध्यान से सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ो और फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि आपके एमसीक्यू पेपर टेस्ट हो गया ना टर्म 1, तो आपको एमसीक्यू से यूज टू होना पड़ेगा। आपको इन तरह तरह के एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने की आदत डालनी पड़ेगी। तो दीज टाइप्स ऑफ क्विजेज, शॉर्ट क्विजेज आर द प्रैक्टिस फॉर यू, आपके लिए प्रैक्टिस है। तो आप सोचो कि इनमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि 3 इसमें करेक्ट होंगी, एक ही इसमें इनकरेक्ट होगी और वही करेक्ट ऑप्शन है। तो अब ढूंढो इसमें से कौन सी इनकरेक्ट है। बी, ठीक है, अभिषेक इज सेइंग बी, तो वी हैव पुट बी। अब इसके बाद जब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा करेक्ट है कि नहीं, हमारा ऑप्शन हमने सही चुना है कि नहीं। देन कोलेनकाइमा डिफर्स फ्रॉम स्क्लेरेनकाइमा इन, कोलेनकाइमा जो टिश्यू है वो स्क्लेरेनकाइमा से किस चीज में अलग है? इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्क्लेरेनकाइमा। श्योर, 2 अलग अलग टिश्यूज हैं, 2 अलग नाम है, एक का नाम स्क्लेरेनकाइमा, एक का नाम कोलेनकाइमा है, तो कॉमन सेंस है कि 2 अलग चीजें ही हैं, पर किस लिए डिफरेंट है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा? ठीक है, इनमें स्ट्रक्चर में क्या अलग अलग है दोनों का? जो कोलेनकाइमा होता है, अगर आपको उसका डायग्राम याद है, तो कोलेनकाइमा क्या है, कॉर्नर्स पे से बहुत थिक था। कोलेनकाइमा क्या था? इट इज मोर थिक एट द कॉर्नर्स, ठीक है, और हेक्सागन जैसा उसका शेप था, एंड सेल वॉल जो थी वो काफी थिक थी, किस पे से? कॉर्नर्स पे से, ठीक है। यहाँ पे भी एंगुलर थिकनिंग्स मिलती है कोलेनकाइमा में, यहाँ पे भी सेलुलोज भरा रहता है, यहाँ पे भी कोने पे सेलुलोज भरा रहता है, यहाँ पे भी सेलुलोज भरा रहता है, सब कोनों पे क्या रहता है? सेलुलोज भरा रहता है। एंड स्क्लेरेनकाइमा का अगर डायग्राम देखो, तो स्क्लेरेनकाइमा क्या तो पतला लंबा सेल होता है और लिग्निन भरा रहता है, और ऐसे कहीं कहीं पे जगह होती है तो उन्हें पिट्स कहते हैं, ऐसे करके वो बहुत पतले से जगह छोड़ते हैं अपने अंदर और उनमें लिग्निन भरा होता है। पर इनके अंदर वैक्यूल्स भी होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, इनके अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है, यानी कि कोलेनकाइमा क्या होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं। कोलेनकाइमा आर लिविंग सेल्स, ठीक है, ये लिविंग है। और क्या है? इनके कॉर्नर्स थिक हैं, जबकि जो स्क्लेरेनकाइमा है ये फाइबर का मैंने डायग्राम बनाया। स्क्लेरेनकाइमा का टिश्यू होता है फाइबर। एक और टिश्यू होते हैं स्क्लेरेनकाइमा के ऐसे, जब आप बुक में डायग्राम देखोगे जिसमें बहुत ही कम कम स्पेसेस है, बाकी सारी चीजें लिग्निन से भरी हुई हैं, इतनी इतनी स्पेसेस हैं बस, जो बीच बीच में लाइनें बनाई हैं, इनको स्क्लेरिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्लेरिड्स। ये दूसरी तरीके के स्क्लेरेनकाइमा होते हैं, ये भी डेड होते हैं। तो फाइबर भी डेड है, स्क्लेरिड भी डेड है, तो इसमें अब क्या डिफरेंस हो गया? मैंने तो आपको सब पॉइंट बता दिए, अब तो आपके पास ऑप्शन ढूंढना बहुत आसान हो गया। Having thick wall.
Collenchyma differs from sclerenchyma in having thick wall, retaining cytoplasm at maturity, having wide lumen, being meristematic. Thick walls तो बेटा देखो दोनों की है, Having thick है ना? wall. थिक वॉल बेटा दोनों की है, कॉलिनकाइमा की भी कॉर्नर्स पे से ज्यादा थिक है और मोटी है, बट कॉलिनकाइमा ना लिविंग है, एंड स्क्लेरेनकाइमा की भी अभी हमने देखी लिग्निन से भरी हुई है, वो भी डेड है, उसमें भी सेल वॉल बहुत ज्यादा है. तो रिटेनिंग साइटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी, दैट मींस जब वो बड़ा भी हो जाएगा सेल, जब मैच्योर भी हो जाएगा प्लांट, बाद में भी उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, मतलब हमेशा लिविंग रहता है. कॉलिनकाइमा कैसे रहता है? लिविंग सेल रहता है. समझ रहे हो मेरी बात को? आर यू अंडरस्टैंडिंग? यही होना चाहिए इसका मीनिंग. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, तनीशा's आंसर यू आर गिविंग वेरी गुड. चैट में आप आंसर दे रहे हैं, और भी बच्चे अगर बोलना नहीं चाहते, यू कैन गिव इन चैट द आंसर्स. How many types of elements make up together make up xylem tissue? कितने तरह के सेल से मिलके xylem tissue बनता है? 1, 3, 2 या 4? कितने तरह के टिश्यूज, कितने नंबर होते हैं सेल्स के xylem बनाता है जो? It makes xylem. Tell me, कितने सेल्स हैं xylem में बेटा? How many number of cells? 1, 2, 3, 4. How many number of cells? यस. जाइलम के मेंबर्स के नाम क्या क्या हैं? ट्रैकिड्स होते हैं जाइलम में. नाउ आपका यही काम रहेगा आज, आप जो टिश्यूज चैप्टर है उसको लर्न करोगे. कल हम टेस्ट लेंगे टिश्यूज, आज भी हमने लिया, बट टुमारो वी विल टेक अ गुड टेस्ट. आपको लर्न करके लेंगे, आज हमने सरप्राइज लिया. ट्रैकिड्स होते हैं जाइलम में. देन और क्या होते हैं? वेसल्स होते हैं. मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज वेसल्स हैं. पहले ट्रैकिड्स थे, पहले मैंने जो लिखा था वो ट्रैकिड्स था. तो ये दोनों क्या है? जाइलम के मेंबर्स हैं. और क्या है? जाइलम पेरेन्काइमा है. जाइलम पेरेन्काइमा M4. और फिर बाकी क्या है? जाइलम स्क्लेरेन्काइमा. Xylem sclerenchyma. Yes. So Abhishek is saying four cells are there. How many cells are there? 4 are there. Latex of which of the plant yield chewing gum? इनमें से कौन से प्लांट का जो दूध जैसा सब्सटेंस निकलता है, लेटेक्स जैसा सब्सटेंस निकलता है, उससे च्युइंग गम बनती है? Tell me. Which option you will give? Let us give one answer. We will give castor. अब जब हम सबमिट करते हैं तो देखते हैं क्या करेक्ट होगा. ठीक है? So now we will see हमारे कितने क्वेश्चंस रॉन्ग हुए और उनके क्या सही आंसर्स हैं. We have got 3 questions wrong. 7 on 10 we have got. सबसे पहला वाला is different types of cells carrying out the same function. ठीक है, यानी कि C option, different types of cells carrying out the same function. This is the complex issue. Different types of cells having the carrying out the same function. Next, second is also different types of cells carrying out the different functions is phloem sclerenchyma. ठीक है, phloem sclerenchyma is a different type of cells having different functions. Now coming to next, third is correct. Which of the following plant tissue do not possess living protoplasm? Sclerenchyma में नहीं होता maturity का protoplasm. Phloem in the plant perform function of conduction of water. Correct.
Where is the apical meristem found? Root tip, shoot tip, both A and B. In desert plant, rate of water loss due to the presence of cuticle. मैंने बोला था मोटा क्यूटिकल होता है. कैक्टस को देखोगे आप कैक्टस को देखोगे, डेजर्ट प्लांट है. चलो कैक्टस की इमेज देखते हैं, तो उससे हम उसकी एडेप्टेशंस देखते हैं, क्या क्या एडेप्टेशंस है उसकी, जिससे हम इसको रिमेम्बर कर सकते हैं. क्या बोलना चाहता था ये कि डेजर्ट प्लांट में क्या क्या चीजें होती हैं. So we can see that cactus plant is a desert plant growing in the desert, and it has following adaptations. Spines are there, ठीक है, कांटे बन गए हैं उसके, जो पत्ते हैं स्पाइंस हैं, एंड देन उसके बाद उसके अंदर रूट्स हैं डीप. देन their shape is cylindrical and stem कैसी है, थिक स्टेम है, विद स्टोर्ड वाटर, अपने अंदर पानी स्टोर करके रखती है. थिक स्टेम है तो उसके ऊपर क्यूटिकल चढ़ा हुआ होता है. क्या चढ़ा हुआ होता है? क्यूटिकल. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट कैम्बियम एंड एज द अपिकल मेरिस्टम. ये ठीक है, ये इनकरेक्ट था इन तीनों में, इन तीनों चारों में. 7th क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, तो करेक्टली हमने चूज किया कि कैम्बियम एपिकल मेरिस्टम होता है. ये गलत है, क्योंकि कैम्बियम कौन सा मेरिस्टम होता है? Which meristem cambium is the part? Tell me. लेटरल मेरिस्टम का पार्ट होता है कैम्बियम. किसका होता है? ठीक है, लेटरल मेरिस्टम्स जो डायमीटर बढ़ाते हैं. देन कोलेनकाइमा डिफर फ्रॉम स्क्लेरेनकाइमा इन रिटेनिंग द साइटोप्लाज्मिक मैच्योरिटी. हमारा करेक्ट है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक जाइलम टिश्यू? 4. ये हमारा करेक्ट है. लेटेक्स ऑफ विच प्लांट? एथेरस सपोटा. एथेरस सपोटा जो प्लांट है उसका लेटेक्स च्युइंगम बनाने में यूज होता है. ठीक है, तो कोई हमें जब जो बता देता है, अगर हमें साइंटिफिक नॉलेज नहीं होती तो हम उसे ब्लाइंडली बिलीव करते हैं. कभी कभी कोई हमें पहले ऐसे भी बताता था कि च्युइंगम नहीं खानी चाहिए क्योंकि इसमें एनिमल का मांस होता है, चर्बी से बनती है, क्योंकि बोलते थे बच्चे. पर एक्चुअली में क्या है, च्युइंगम किससे बन रही है? लास्ट में जो ये पौधा दिया हुआ है एथेरस सपोटा, उसके जो उसमें दूध जैसा निकलता है उसके पत्तों में, उसका गम जैसा स्टिकी, उससे बनती है. ठीक है, तो इसलिए हम ऐसे बिलीव नहीं कर सकते. हम तभी बिलीव करेंगे जब हमें उसका एक्चुअल मीनिंग पता हो. इज इट क्लियर? Now we will do a quick revision more about the tissues, because tomorrow is your test. You will be learning about tissues. Okay, then I will be giving you a quiz only. I will prepare a quiz same way we have done today. Tomorrow we also will be do that. What are you saying? Are you saying something? No, ma'am. Okay. You can on your video, beta. I will be taking your attendance on your video for some time. On your video. अपना वीडियो ऑन कर लो थोड़ी देर के लिए. I want to take attendance. ये
सभी बच्चों को अपना टिश्यू चैप्टर रिवाइज करना है। देखो स्टार्टिंग में ही एक टेबल आया, एनिमल टिश्यू प्लांट टिश्यू से किस तरह अलग होते हैं। एनिमल मूव करते हैं, प्लांट मूव नहीं करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंसेस उनके न्यूट्रिशन के नीड में भी है। प्लांट को कम न्यूट्रिशन चाहिए क्योंकि प्लांट एक ही जगह रहता है, एनिमल मूव करता है, उसे ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। एंड जो एनिमल टिश्यूज हैं वो यूनिफॉर्मली उनकी ग्रोथ होती रहती है, पर प्लांट के लिमिटेड रीजन्स में ही ग्रोथ होती है। जो हम जानते हैं 3 जगह ही बस, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। ठीक है, प्लांट टिश्यू का अगर हम फ्लो चार्ट देखेंगे तो मेरिस्टेमेटिक परमानेंट 2 में बांट दिया, परमानेंट को भी 2 में बांट दिया, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम में कॉम्प्लेक्स को बांट दिया, सिंपल को पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा में बांट दिया। परमानेंट टिश्यूज को सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट, यू कैन सी। और फिर इनके स्ट्रक्चर के डिफरेंस, फंक्शन के डिफरेंस, लोकेशन के डिफरेंस हैं। कैन यू सी? Take the major difference between the meristematic and permanent tissues. Name the 3 type के क्वेश्चंस कुछ दिए हैं। फिर ये आपके पास सब नोट्स हैं। एपिडर्मिस के बारे में क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे लीफ के एपिडर्मिस में आपको स्टोमेटा दिखते हैं, उससे गैस एक्सचेंज होता है पौधे में। ठीक है, कैन यू सी? छोटे छोटे से पोर होते हैं माइक्रोस्कोप में। अगर किसी लीफ को आप स्लाइड पे देखोगे माइक्रोस्कोप में, इतने छोटे छोटे से पोर आपको माइक्रोस्कोपिक दिखेंगे जिससे गैस एक्सचेंज होती है पौधे में। इन्हीं पोर्स को क्या बोलते हैं? स्टोमा या स्टोमेटा। इनके साइड में जो 2 सेल्स हैं बीन शेप, इन दोनों को गार्ड सेल्स बोलते हैं। तो ये पौधे की एपिडर्मिस है, प्लांट की ये क्या है? एपिडर्मिस है। देन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा दिया है, आउटर लेयर और प्रोटेक्टिव टिश्यू के रूप में दिया है कि लकड़ी बाहर, सबसे लास्ट में जो लकड़ी होती है किसी भी पौधे के तने में, वो उसकी प्रोटेक्टिव टिश्यू होती है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू को जाइलम फ्लोएम में जाइलम के मेंबर्स, फ्लोएम के मेंबर्स बताए हैं। वस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम मिलाकर वस्कुलर बंडल बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज बता रखे हैं। देखो ट्रैकिड्स और वेसल्स के डायग्राम दे रखे हैं जाइलम में। फ्लोएम में सीव ट्यूब्स के डायग्राम दे रखे हैं। फ्लोएम स्टेरेन्काइमा का डायग्राम दे रखा है। जाइलम में देखो वाटर कंडक्ट होता है, ये बताया है। फ्लोएम में फूड कंडक्ट होता है, वो बताया है। कैन यू सी? एनिमल टिश्यूज में फिर एनिमल टिश्यूज में आपका चारों तरह के टिश्यूज बताए, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। ठीक है, एपिथेलियल के भी फंक्शन, स्ट्रक्चर्स ये सब बताए हैं। स्ट्रक्चर्स, कनेक्टिव टिश्यू का एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, मस्कुलर टिश्यूज के डायग्राम बनाए हुए हैं। कार्डियक टिश्यूज, ठीक है, नर्वस टिश्यू में इससे मैसेजेस जाते हैं। तो इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट है। नाउ आई एम एंडिंग द क्लास बिकॉज देयर इज अनदर पीरियड। ओके।